वो जोर से बोलो, ठीक है? माय नेम इज तो कोई बात नहीं, मुझे पता है वो इंटरेस्ट नेम है इंपॉर्टेंट है, कम करें सेकंड रूम में आप ही कर रहे हो रिकॉर्ड? आप अपना कर रहे हो? So we're going to record the talks so that other students can benefit. तो इसको हम इसको चल रहे हैं, फैंस ठीक है, आवाज़ ठीक है, होगा साउंड ठीक है, सर रिमूव हो जाएगा, हाँ इसी को। Okay, welcome to this seminar on civil services, और हम लोग बात करेंगे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, ठीक है? And we will talk about careers in the civil service, ठीक है? सिविल सर्विस क्यों हमें करना है और क्यों पढ़ना है, इसके लिए और क्यों तैयारी करनी है? Why? First point is why civil service. So firstly, I always say there are 5 types of careers. 5 types of careers. The first type of career is actually a government sector career, जिसमें हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पूरी लाइफ में हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं। एट द एज ऑफ 24, 25 या 23, 24 जो भी आपने ज्वाइन किया, 26, 27 भी हो सकता है, और आपने 30 to 35 इयर्स के लिए गवर्नमेंट सर्विस में जो गवर्नमेंट सर्विस नीड नॉट बी सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विस कैन बी army, it can be clerical, it can be paramilitary, it can be doctors in the government, it can be an education career जहाँ पे आप टीचर हैं, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर करियर हो सकता है। So for 35 years you are in the government। ये भी हो सकता है कि बीच में आप छोड़ के कुछ और कर ले, that's a different matter, ठीक है? Next point, next type of career is a private sector career। Private sector career is one where you work for a company, you work for Google, Pepsi, Gendamal Himraj, कहीं पे भी आप काम कर सकते हो for a salary। वो सैलरी आपको मिलती है क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के लिए मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, HR, whatever रोल आप उसमें हैं वो आप कर रहे हो। पूरे जिंदगी आप प्राइवेट सेक्टर में, so you work for one company for 5 years, another one for 10 years, another one for 5 years, or you work for one company for 30 years, it's your choice। Private sector का, okay? The difference between government and private sector is that the private sector's main objective is to make what? Profit। Private sector का mainly objective is to make profit। And government का objective is not to make profit, government का job is to give service and protect the society। Number 3 is self-employed professional, advocate, doctor, architect, अपने practice शुरू करें, lawyer, and you are being paid for your services। Architects who are preparing designs, getting them approved from the government, etc. आपके बिल्डिंग का डिजाइन बनाया, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए या गवर्नमेंट के लिए देना, राइट? Number 4 could be an NGO, which is not government, which is not private, which is not self-employed. You are working for the NGO, non-government organization, लेकिन वो NGO आपको सैलरी दे रही है, or you are running the NGO, whatever it is, लेकिन आपको जो भी रेवेन्यू आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जो भी अच्छी सैलरीज भी मिलती हैं आजकल NGO में। One of my daughters is in an NGO, she works for an NGO। And the last one I would say is a startup। ये first भी हो सकता है, just a categorization, कि you are the person who has started up the company, entrepreneur, ठीक है? तो उसमें आपने नया एक वेंचर शुरू किया, रिस्क लिया, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया पैसा, पेरेंट्स ने हेल्प किया, जो भी किया, यू स्टार्टेड योर ओन कंपनी। मे बी यू डिड अ जॉब फॉर 5 years and then you started your own company, or you started your own company and you thought it's not doing well, you started doing a job for HDFC Bank। HDFC की प्रमोट नहीं करेगी। Next point is that these 5 types of careers can be interchanged।
गवर्नमेंट का ये होता है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट में जो आता है वो छोड़ता है, कुछ लोग छोड़ देते हैं मेरे जैसे, बट अदरवाइज ज़्यादातर लोग नहीं छोड़ते, ठीक है। मैंने भी बहुत देर बाद छोड़ा, जल्दी नहीं छोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट यू हैव टू सी व्हाट इज योर मेकअप, आप क्या है, आप कौन है। हर एक का मेकअप डिफरेंट है। मेकअप का मतलब क्या है, नॉट एक्सटर्नल मेकअप, नॉट योर फेस बट योर माइंडसेट। माइंड का मेकअप क्या है, आपकी टेंडेंसीज क्या है, आपका शौक क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर योर हैबिट्स, व्हाट इज योर इंक्लिनेशन, आर यू वांटिंग टू सर्व द सोसाइटी और यू वांट टू बी रिच। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा आपसे, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू ऑप्शंस कि आपका रुझान, आपका माइंडसेट, आपकी सोच क्या है। So if you want to serve the nation and join the army, it's a different type of mindset from getting paid by Pepsi to produce Pepsi, market Pepsi and be a part of the company called Pepsi. Pepsi पीने से वैसे ही कोई किसी को फायदा नहीं होता, रिफ्रेशमेंट जरूर हो सकती है, फायदा नहीं। अभी पेप्सी तो निकला रहे हैं इसके बाद, ठीक है। So the point is that we have to find the career which is as per our mindset, जो आप दिल से चाहते हैं। कई बार हमें पता नहीं, we don't know what we want. That is why you are also here, because you are not sure as to what you really want. So if that is the case, then it takes time to find. कोई बहुत कम लोग होते हैं जिनको शुरू से पता होता है कि ये करना है। अब जायसवाल अगर 22 की एज में इंडिया के लिए ओपनिंग बैट्समैन बन गया, वो 14 की एज में यशस्वी जायसवाल बैटिंग करनी शुरू कर दी उसने टॉप लेवल पे। अभी कौन है वो 14 ईयर ओल्ड? वैभव सूर्यवंशी। ही इज 14, उसको तो पता है उसने क्या करना। लेकिन अभी जो 14 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड भी है, उसको नहीं अगर पता है, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों ने अपना करियर काफी लेट चेंज किया, तो हमें ही नहीं पता व्हाट वी वांट टू डू इवन एट दैट स्टेज, राइट। सो इट्स ओके टू बी अनश्योर, यू कैन चेंज योर करियर। आपने पहले जॉब किया, उसके बाद आपने कोई बुटीक खोल लिया, कोई आपने पार्लर खोल लिया, कोई आपने कार सर्विस शुरू कर ली, कोई आपने कुक्स की सर्विस शुरू कर ली। आजकल एक नया ट्रेंड है दैट पीपल हु वांट कुक्स एट होम, दे गो टू द ऐप एंड they order that a cook may be sent to our house quickly. Within 15 minutes the cook will come. जैसे ओवन कंपनी वगैरह वो सब प्रोवाइड करते हैं सर्विस, उसी तरह ये कुक सर्विस है। आपके गेस्ट आ गए, कुक बीमार हो गए, कुछ हो गया तो आपने बुला लिया उसको, हाथ देख लिए, व्हाटएवर। सो दीज आर आल्सो नाउडेज कंपनीज हैव स्टार्टेड लाइक दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिविल सर्विसेज इन डिटेल, थोड़ा सा, नॉट टू मच डिटेल, थोड़ा डिटेल, जस्ट एन ओवरव्यू। डॉक्टर विवेक राणा इसके बाद आपको और बताएंगे। वी आर हियर टू टॉक अबाउट द करियर इन द गवर्नमेंट सर्विस। नंबर 1 जो बताया, विच इज सिविल सर्विसेज करियर। सिविल सर्विसेज में IAS, IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, all these services are part of the civil services. Then there are state civil services, Haryana civil service, Punjab civil service, Himachal administrative service, Rajasthan administrative service, UP civil service, जो कि स्टेट की ऑफिसर्स होते हैं, वो उसी स्टेट में रहते हैं। जो पहले मैंने बताया IAS, IPS ऑफिसर्स, वो they can go to government of India that is in Delhi and they can stay in one state like Karnataka or Haryana or Punjab. They can be transferred here. Foreign service officers can be transferred abroad also. वो ज़्यादातर अपनी लाइफ या half their career they are abroad in other countries in the embassy on behalf of Indian government of India. They will be there. So all these civil services have competitive exams before you join. वह ये तो है नहीं कि हाँ जी मुझे IAS ज्वाइन करने आ जाओ, ऐसे तो नहीं होता। So you have to struggle because lakhs of people want to join the IAS
and only 100 and something will join every year. 800 and something will join all the civil services of India every year through the UPSC, Union Public Service Commission exam. UPSC exam 800 something or 900 something roughly will join. Now state civil services exam are separate. The Punjab Public Service Commission will conduct an exam for PCS. PCS में क्या होता है? एक होता है PCS, and I'm not writing anything on the board here. PCS executive. जो मैं था, मैं हरियाणा सिविल सर्विस में था. HCS executive, which means you are in the topmost service of the state. But IAS is the superior service to HCS. और HCS, PCS में से आप प्रमोट होते हैं IAS में after certain number of years. So either you will be promoted from the state civil service to IAS, or you will come through a competitive exam which is UPSC. Roughly 2/3 of the IAS officers of India are through the UPSC exam. 1/3 through the promotion from state civil service. Similarly, police service, inspector, DSP. DSP के बाद आपको promotion मिल सकता है to the IPS. Then you become additional SP, SP, DIG, IG वो IPS की post है normally. ठीक है, समझ गए? Then the paramilitary forces like border security force, Central Reserve Police Force (CRPF). Airport पे security होती है CISF, Central Industrial Security Force, right? These are the services of India roughly. All states will have other services also. If you want to join the civil services, what is the key word? इन सब में common word क्या है? जितनी सर्विसेज मैंने बोली उनमें कॉमन वर्ड क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विस. So all the services have a common word. Either they have force, border security force, or they have service. Even defense services, paramilitary services. So this service is the key word. That means if you want to serve the country, society, then you join the service. Health service, education service. जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में करियर बनाते हैं, टीचिंग करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनमें से एक प्रिंसिपल बन जाते हैं बाद में, कई लोग प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस बन जाते हैं. वो एजुकेशन सर्विस में वो अपने आप को हरियाणा में दे कॉल देमसेल्व्स हरियाणा एजुकेशन सर्विस. सो दैट इज आल्सो सर्विस. So if you have the mindset to serve, then you will try for the civil services. हम इसलिए civil services में नहीं जाना चाहते या नहीं जाना चाहिए कि हमें जो एक पंजाबी में बोलते हैं थुक क्या होती है? टॉर, स्टेचर, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी को मिल गई इसलिए हमें civil services में. ये गलत सोच. वो आपका एक बाय प्रोडक्ट है. That is a byproduct. That is also another benefit. But the main thing is that you will serve the society, and you will have the power to serve the society. I want to serve the society without being in the service. I can't do much. I can form an NGO, etc. But if I am in the post of, let's say, Panchkula is run by a municipal corporation. If you are the commissioner of the municipal corporation, you can do so much for Panchkula. You have the power and the duty to serve the society of Panchkula in that post. Civil services में क्या होता है कि आपका करियर जूनियर लेवल पे शुरू होकर बहुत सीनियर लेवल पे खत्म. जो लोग डायरेक्ट IAS IPS में आते हैं वो चीफ सेक्रेटरी या DGP लेवल में रिटायर होते हैं. चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज द सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट. उनसे सीनियर सिर्फ चीफ मिनिस्टर होते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कुछ लेवल पे. चीफ सेक्रेटरी इज वेरी सीनियर. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं वो सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर. सारे पुलिस ऑफिसर उनके अंडर. दिल्ली जैसी सिटीज में DGP नहीं होते, IGP नहीं होते, पुलिस कमिश्नर. पंचकुला में भी we have a deputy commissioner of police. We have a deputy commissioner in the IAS and we have a deputy commissioner of police from the IPS. Now these services are क्या काम क्या होता है?
The role is to implement policies of the government. गवर्नमेंट ने बना दिया एक स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ द एल्डरली. जो 70 इयर्स प्लस के लोग हैं उनको हमें हेल्प करना है, किसी स्कीम है हमें, और आप नोडल ऑफिसर है, यू आर द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, DSW. Supposing you are the DSW and you are supposed to implement, funds are coming for the elderly. Elderly लोग जो अकेले हैं या जिनकी इनकम नहीं है, जिनको फैमिली भी नहीं है, उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से. इवन इफ दे हैव नॉट वर्कड इन द गवर्नमेंट, उनको ओल्ड एज पेंशन. आप DSW है, आपका काम है कि उनको मिले, सब ठीक से मिले. आपकी टीम है, आपके ऑफिस है. व्हाट अबाउट CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? कोविड है, कोविड में CMO का रोल कितना important था that they were able to prevent COVID in the district. They had to, they tried to. And Panchkula was a very good CMO. They did very well in Panchkula. Shuru mein there was a big shock when COVID came, but they recovered and they did well. I am only giving an overview, so I will give only one or two more points. Okay. One of the main duties of a civil services officer is public dealing. पब्लिक जो ऑफिस में जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, कोई एप्लीकेशन देनी है, आपका पड़ोसी आपको तंग कर रहा है, पुलिस को जाके आपने बताना है. वैसे गलत कंप्लेंट्स नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई जेन्युइन है, आपको ग्रीवेंस है, तो आप जाके कंप्लेंट दे रहे हैं, तो पुलिस का काम है उसको सॉर्ट आउट. और पब्लिक डीलिंग इज अ बिग रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स. You can't sit in a room cabin and just be by your computer and people are waiting outside. उनको नहीं मिलते, ऐसा नहीं, मिलना है. जो लोग मिलने आ रहे हैं ऑफिस में, जिनका काम है उनको मिलना, उनको मिलना चाहिए. मिल के उनके ग्रीवेंसेस, कोई एप्लीकेशन आ गई, वो एप्लीकेशन पकड़ के उसमें कुछ लिख के जो भी किसी को पास करना है वो अपना ड्यूटी करेगा. So this is the role of the civil services officers, public dealing. Village visits, सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठना, फील्ड में जाना. XCM भी होते हैं ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सब डिविजनल ऑफिसर, SDO, XCM, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर. These are the PWD, electricity, public health departments of the government, जो कि रोड्स बनाते हैं, बिजली आती है, these kind of things. They also have to deal with the public. आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, somebody has to rectify it. Okay. Another role of the civil services is to prepare proposals, projects. पढ़ने लिखने का काम, कोई ऐसा प्रपोजल बनाना जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी. पंचकुला, let's say Panchkula needs to be upgraded, something in Panchkula needs to be upgraded, some facilities, drinking water facilities are to be set up all over Panchkula. We don't have any such facilities as far as I can see. People passing by, cycle वाला रुक के पानी पी सकता है, clean water. Supposing we want to do that, then we need to make a proposal and we need to get an estimate, and then we need to send it to the government कि इतना खर्चा होगा इसमें. Government then gives budget, right? Defense, we had a conflict with the neighboring country. उसके बाद defense will say हमारे पास आपने ये तो दिया नहीं. If we had this, we will be better prepared. Air Chief said something. So we will be better prepared if we have more budget for the defense. So this kind of thing is also. This is not public dealing, this is strategy, this is policy. But policies are approved by the parliament and the legislature. तो government के 3 wings होते हैं overall. Executive, which is chief minister, chief secretary, DGP वगैरह मिला के government. Legislature, which is the elected representative, member parliament, MLA, और municipal corporation में elected MC या सरपंच, पंच, ये होते हैं इलेक्टेड. और थर्ड विंग ऑफ द गवर्नमेंट इज जुडिशियल, जजेस, कोर्ट्स who decide. So these are the 3 wing, and then loosely we say that the media is the 4th estate. Media is the 4th wing of democracy. लेकिन वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं. ठीक है, दिस इज एन ओवरव्यू. तो अगर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आपको ऑलराउंडर बनना है. सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के नहीं बन सकता. केमिस्ट्री किसको अच्छी लगती है? किसको अच्छी लगती है?
सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के नहीं बन सकते। हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट भी अच्छा लगना चाहिए, हमें म्यूजिक भी आना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स भी आना चाहिए, हमें जीके भी अच्छी होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स आर नॉट यूनिडायमेंशनल, दे आर मल्टी डायमेंशनल। मतलब कि हमें थोड़ा सा सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये नहीं करना कि मुझे तो सिर्फ अपना पता, दैट कांट बी योर पर्सनैलिटी हैज टू बी वाइड। Even otherwise, in any career, if you have knowledge of other things, it's better. So I close here. Any question? जो मैंने बोला उसके बारे में, यूपीएससी एग्जाम में क्या तैयारी करनी है, सिविल सर्विस में क्या तैयारी करनी है, वो विवेक राणा सर बताएंगे। सिलेबस ब्रॉडली क्या होता है, कैसे होता है, वो सर बताएंगे। तैयारी कैसे करेंगे, उसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, वो सब होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जहाँ तक मैं आपको देख रहा हूँ जो यहाँ पे कैंडिडेट्स या यंगस्टर्स बैठे हैं, यू आर ऑल सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है कि मन लगा के काम करते हो, जो भी करते हो मन लगा के अगर हम काम करेंगे तो हम हो सकते हैं क्लियर। ठीक है, कोई सिफारिश नहीं होती इसमें सिविल सर्विसेज के कंपटीशन में जो हार्डवर्क करेगा वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, टॉप आएगा। इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं, इसमें तो आपको सीरियसली काम। ठीक है, एनी क्वेश्चन? विवेक सर से और क्वेश्चन पूछ लेना, बहुत सारे आंसर देते हैं हर क्वेश्चन। ओके ओके, आई सी यू लेटर। व्हाट आर योर नेम्स? प्रथम,